Good We morning, may sir. have, yeah, Sir, myself Sindhuja. yeah, I'm studying in MTech final year okay, in CAD structures. So I was always passionate about even before taking up engineering. I was passionate about architecture and interior designing as well. okay, I took up civil engineering as my career option. very good, My question is, what extra courses now I can do so that I improve my skill. I can improve my skills in that fields as well. okay. So you are completing your MTech in structural engineering, Yes, and sir. yeah, and you were already interested in interior designs and architectural areas as well. Yes, So I would suggest that it is a good combination because a structural engineer should be good in visualization. So if you have been interested in architecture as well as interior, it means you already have good visualization skills. And if you are good in mathematics only, then you have chosen your MTech in structural engineering. So this is a very good combination. So you can become a very good structural engineer for the buildings now, okay. or you can become a very good structural engineering coordinator, because with that profile as a coordinator, you would be like more discussing about architectural aspects also, and you can help in planning and development of the buildings. So buildings is the area where you can do well. And if you are interested in tall buildings, then you need to study more towards tall structures. But as you were interested more in architecture and interiors, I would suggest that you should focus on normal buildings, which are having, say nowadays very complex buildings are coming up with larger spans and difficult normal configuration. So that can be better area for you to choose your career, because that will give you more satisfaction. And for that, you should be having thorough understanding about the requirements of IS 456, and whatever what kind of project you have taken in your MTech. In your MTech, what is your project area? Yes, Ms. Sindhuja? So analysis of uh, school building with dampers, sir. With dampers. Okay, that's good. So you are already working for the seismic designs and dynamics, structural dynamics. So that is good area. If you are able to have good hold on requirements of IS 456 and IS 1893 with this structural dynamics, dampers, and maybe some other energy devices, your career is going to be very good. So Okay. I think you have chosen your correct path. You either do school buildings or institutional buildings or commercial buildings. You can do farmhouses. You can do very complex residential buildings as well. So this is the good area. I think that would make you very happy and successful. Okay. Thank you, sir. Yes. Anybody else? Hello, sir. Good Yeah. afternoon. Yeah. Sir, I am a final year student, BTech. Okay. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं फर्दर स्टडी किस फील्ड में कर सकता हूँ, मीन स्ट्रक्चर में, कि 2-3 साल बाद मेरा करियर किस में अच्छा रहेगा. ओके, आपने जो अभी सिविल इंजीनियरिंग ली है, आपको अभी तक की जो ग्रेजुएशन कोर्सेज में कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? सर मुझे तो स्ट्रक्चर अच्छा लगता है. स्ट्रक्चर अच्छा लगता है. स्ट्रक्चर इज आप गुड. या स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपको अच्छी समझ अंडरस्टैंडिंग बनी थी जब आपने पढ़ा था? हाँ सर, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में सब डीएसएस होता है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, एडीसीएस एडवांस डिजाइन कंक्रीट स्ट्रक्चर, बेसिक डिजाइन कंक्रीट स्ट्रक्चर. तो आपके लिए तो बेस्ट ये है, अगर आपको अभी बीटेक के बाद कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बिल्डिंग डिजाइन में किसी कंसल्टेंट के पास, आपके लिए वो बहुत अच्छा एरिया बन सकता है. और अदरवाइज आपका वैसे बोलने चालने के इंटरेस्ट आपके कैसे हैं? मतलब आप जनरली चुप रहना पसंद करते हो या ज्यादा बोलना पसंद करते हो? ना सर मैं ज्यादा बोलता हूँ, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो सब सिविल में ही है, मेरे फादर अंकल सब. तो फिर तो आपको एग्जीक्यूशन फील्ड भी सूट कर सकता है, क्योंकि अगर आपका एनालिसिस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप कुछ छोटा मोटा एक कोर्स कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स को अच्छा बना करके रखें. जैसे हमने भी अभी कोर्स शुरू किया था जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो डिजाइनर हो चाहे वो एग्जीक्यूटर्स हो, सबके लिए यूजफुल होते हैं. आप उस तरह का कुछ कोर्स करें, या कोई अपॉर्चुनिटी आपको कंसल्टेंट ऑफिस में मिले तो आप 2-4 महीने का टाइम स्पेंड करें, ताकि आपको समझ में आए कि कंसल्टेंट क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है.
और फिर आप अपना करियर बनाए एग्जीक्यूशन में, प्रोजेक्ट प्लानर, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, सर कंस्ट्रक्शन। एमटेक के लिए उस केस में सर आपको एमटेक की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एमबीए कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एमबीए। हाँ जी, ओके सर, ठीक है। थैंक यू आपको सर। उसमें कंस्ट्रक्शन की भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। आप यस सर, उसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बहुत सारे एरियाज आपको समझने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपके लिए अच्छा हो सकता है। यस सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। Sir, good afternoon, sir. This is Raghavan Kumar. ओके, बताएं राघवेंद्र। Sir, I had passed my BTech in 2018, and from last 2 years, I'm working in the industry in the field of retrofitting and rehabilitation. वेरी गुड। So, sir, I was little bit confused about my career. While working, I'm not able to crack some government exams. That is why, sir, it is not possible for me to get NITs or IITs or MTech. So can I do MTech from any prestigious colleges? It is worth it or not? देखिए, अब आपको इसमें फिर वही बात है कि आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है और आप किस चीज को टारगेट कर रहे हो। एनआईटीज या आईआईटीज में एडमिशन मिलना इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। आपको एमटेक में एडमिशन मिल सकता है एनआईटीज या आईआईटीज में। आपको अल्टीमेटली सोचना ये होगा कि आपको करियर किस चीज में बनाना है। अगर आप जाना चाहते हो डिजाइन फील्ड में, तो आपके लिए एमटेक करना एडवाइजेबल होगा। अगर आप एग्जीक्यूशन में ही रहना चाहते हैं, तो आप डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिस्टेंस लर्निंग से भी आपको सिखा सकती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का इंटरेस्ट है कि आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब के कॉम्पिटिशन्स बीट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको टाइम चाहिए होगा पढ़ने के लिए। आपको टाइम चाहिए होगा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के स्किल्स डेवलप करने के लिए। तो उसके लिए आपको किसी भी अच्छे कॉलेज में जहाँ पे अच्छा पढ़ाई का एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे थोड़ी फैकल्टी अच्छी मिल जाए, आप जा सकते हैं। एनआईटीज में जनरली आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल ही जाएगा। अगर आप आईआईटीज में जा सकते हैं तो आईआईटीज में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी फील्ड में हैं और आप केवल गवर्नमेंट जॉब पे टारगेट लेकर के एमटेक करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेटर होगा आप एनआईटीज को ही चूज करें। Sir, ultimately, sir, मेरा टारगेट डिजाइन के लिए है सर। अगर आपका टारगेट डिजाइन्स में जाने का है, तो फिर आपको टारगेट करना चाहिए आईआईटी, और अगर आईआईटी नहीं हो पाता तो एनआईटी, किसी अच्छे एनआईटी से आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक करें। जी सर, थैंक यू सर। Sir, good afternoon, sir. Very Myself, Sumant. Hmm. I'm in third year BTech, sir. Okay. Sir, like I'm in civil engineering department, as well as I'm interested in machine learning and all, sir. Very good. So can you tell me what's the scope of machine learning in civil engineering, sir, in today's era? इन मशीन लर्निंग में आपका और एक्सप्लेन चाहूंगा, किस तरह का मशीन लर्निंग आप इंटरेस्टेड हैं? Like I've just started learning machine learning during these holidays. So I'm just looking into clusters and all, sir. So mechanization you want to say. In machine learning you want to say that you want to do some kind of mechanization in the construction industry you are interested in. Right? Yes sir, yes sir. तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अभी तक जो मैकेनाइजेशन वाला जो एरिया है, वो ज्यादातर अभी मैकेनिकल इंजीनियर्स डोमिनेट करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी है उसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जो कि जनरली मैकेनिकल इंजीनियर्स के कंट्रोल में रहता है। उनकी मेंटेनेंस, उनका सिलेक्शन, उनका परफॉर्मेंस, उनके बहुत सारे एस्पेक्ट्स। बट सिविल इंजीनियर्स भी उस फील्ड में काफी अच्छा काम कर सकते हैं, और ऑटोमेशन भी जैसे बढ़ रहा है बहुत तरह का, इवन प्लास्टरिंग के लिए। तो अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं, तब तो आपके लिए मैं कहूंगा कि थोड़ी सी लिमिटेशंस ज्यादा हैं, आपको थोड़े से अपॉर्चुनिटी शायद नाम ज्यादा मिल पाए। बट अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डेवलप दिस मशीनरी फॉर दिस, ऑटोमेटिक प्लास्टरिंग हो जाए या कुछ स्पेशल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग के लिए आप कुछ मशीन्स बनाना चाहें और वो अच्छी मशीन बनाकर मार्केट कर सकते हो, so that may be a better opportunity area, because you would be able to understand the requirement of civil engineers, and then with the help of some mechanical engineering friends you would be able to develop very superior quality machines. And if you are talking about some kind of instrumentations kind of thing, then again you have very good opportunities. In civil engineering many instruments are required, of course presently being dominated by instrumentation engineers, electronics engineers and mechanical engineers, but without civil engineers they can also not do the best thing.
थोड़ी सी कम है अपॉर्चुनिटी इस तरह के एरिया में सिविल इंजीनियर्स के लिए, बट यू विल हैव टू लुक, अगर इफ यू हैव पैशन अबाउट इट, यू विल हैव टू लुक इन दैट एरिया, and I wish you get a very good success in that. Okay, thank you, sir. Sir, hello, good afternoon, sir. Yes, very good afternoon, Manish. Sir, my tech third year student at NIT Srinagar. Yes, okay. Sir, my major query is to get a good competitive job in the government sector, but as you said ki we have a more scope in the private sector, but still my major aim of the life is to get a good and reputed government job. So can you please suggest me? गवर्नमेंट सेक्टर में भी डिफरेंट एरियाज की जॉब रहेगी. गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको पहले चूज करना चाहिए कि आप किस तरह के प्रोफाइल में आप जाना चाहते हैं. इंजीनियरिंग सर्विसेज इस सभी के लिए टारगेटिंग रहा है. दो मैंने तो जब इंजीनियरिंग किया था तो आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट डू गवर्नमेंट जॉब, बट मेरा जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ वही गवर्नमेंट सेक्टर से हुआ, तो मुझे अपना करियर गवर्नमेंट में शुरू करना पड़ा. बट इट विल ऑल डिपेंड. अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो. इंजीनियरिंग सर्विसेज में रेलवेज इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन, बिकॉज रेलवे के बहुत बड़े एक्सपेंशन प्लान्स हैं. तो रेलवे में टनल से लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग होती है. वी आर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी टू सम रेलवे डिपार्टमेंट्स एज वेल. सो आई नो दैट वेरी गुड एनवायरनमेंट एंड वेरी गुड फ्यूचर. बट अदर देन रेलवेज आल्सो CPWD है, BRO है, और so many other departments, government departments, which can hire good civil engineers from engineering services. Now, other than engineering services, other level के AE level पे, assistant engineer level पर भी vacancies निकलती हैं different state government की और central government की. आप उसमें भी competitive exams के थ्रू कोशिश कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है आप गेट की तैयारी करें. अभी आप थर्ड ईयर में है ना शायद, तो आप गेट की तैयारी, हाँ आप गेट की तैयारी करें. फरवरी में गेट का एग्जाम होता है. एंड इफ यू स्कोर वेरी हाई, इफ यू गेट अ वेरी गुड रैंक इन गेट, सपोज यू गेट 30, 40, 50 रैंक, तो गेट के रैंक के बेसिस पर भी बहुत सारे PSU डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफर देते हैं. तो आप उस तरह से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, चाहे वो NTPC हुआ, NHPC हुआ, बड़े बड़े PSUs जो हैं, BHEL हुआ, गेल हुआ, इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो जस्ट आपके गेट के स्कोर के बेसिस पे आपको अपॉइंटमेंट दे सकते हैं. तो यू शुड प्रिपेयर फॉर गेट आल्सो. कहना चाहूंगा कि मतलब पहले मुझे अगर जो है कोचिंग अगर सर मुझे अगर लेनी है तो मैं पहले स्टार्ट में सर मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज से ही करूं. मतलब मेरा मेन आपका जो जनरली जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों की कंबाइंड ही ट्रेनिंग कोचिंग देते हैं. तो आप अगर बहुत अच्छी डेप्थ बना पाएंगे तो आप ES के लिए आप अपने आप को ज्यादा तैयारी करके उस तक बढ़ सकते हैं. बट अगर आपको लगा कि आपका एम ES नहीं है, इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं है, तो आप गेट के लिए इतनी अच्छी, क्योंकि कम टाइमिंग भी अलग अलग है. गेट का एग्जाम फरवरी में हो जाता है, ES का एग्जाम अलग मंथ में होता है, मेरे ख्याल से मई जून में होता है. तो आप जब नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने लगा दीजिए पूरी तरह से गेट के ऊपर तैयारी में. तो फरवरी के सेकंड संडेज को होता था. अब मुझे मालूम नहीं अब आफ्टर कोविड क्या सिनेरियो रहेगा. फरवरी के सेकंड संडे को जनरली गेट का एग्जाम होता रहा है. तो आपको अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करनी होगी. जैसे ही आप फाइनल ईयर में अक्टूबर में पहुंचते हैं तो आप अपनी पूरी फोकस लगा दें गेट के लिए. एंड इफ यू आर एबल टू गेट गुड रैंक, दैट विल बी द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन PSUs. Okay sir, what are the opportunities available in the ISRO and DRDO? Available in DRDO? Yes sir, and ISRO. नहीं, DRDO में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बट फॉर सिविल इंजीनियर्स मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी DRDO में अभी नहीं है. लेकिन अगर वहां पर भी वैकेंसीज निकलती हैं, स्पेशल टेस्ट होते हैं, तो जब भी आपको वो वैकेंसी वहां पर कोई दिखाई दे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप कर सकते हैं अपने आप को. यू कैन प्रूव योरसेल्फ इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस टू बी इन DRDO. सीट सिविल इंजीनियर्स के लिए सीट शायद थोड़ी कम रहती हैं आजकल. Yes sir. Okay, thank you so much sir for your guidance. वेलकम. Good afternoon sir. हाँ, गुड आफ्टरनून फरहान, बताएं. Sir, I am a final year civil engineering student. Okay. And I was thinking to open a consultancy after some 5 to 6 years. Okay. So will you suggest me to
take a job in which field so that I will be very good consultant in future. आप कंसल्टेंसी किस फील्ड में, आपका जो कोर स्ट्रेंथ एरिया है वो क्या है, आपको क्या लगता है कि यू कैन डू गुड? Like residential buildings. आप बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चरल में ही आप ज्यादा सोचते हैं? बिकॉज कंसल्टेंसी में भी बहुत सारे एरियाज हैं। इवन आप अगर आप देखेंगे कि आपकी ड्रेनेज डिजाइन है, सीवरेज डिजाइन है, हाइड्रोलिक फैसिलिटीज की डिजाइन है, ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कंसल्टेंसी का है, जिसमें लोग अच्छा काम करते हैं। बिकॉज बहुत सारे सिटीज इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, प्रॉपर सब वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं है, सीवरेज सिस्टम नहीं है, ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है। तो वो भी एक बड़ा एरिया है जहाँ पर सिविल इंजीनियर्स कैन डू बिग रोल। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल एरिया में ही करना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर यही होगा कि आप कम से कम 1 साल साइट पर लगाएं, एग्जीक्यूशन में लगाएं। बिकॉज बिना एग्जीक्यूशन में गए आपको विजुअलाइजेशन नहीं होगा, डिफिकल्टीज का पता नहीं चलेगा। एक अच्छा कंसल्टेंट बनने के लिए आपको फील्ड का फुल एक्सपोजर होना जरूरी है, और कम से कम 4 या 5 साल आपके कंसल्टेंसी में होने चाहिए। तो अगर आपके 4 या 5 साल आपने किसी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन में लगाए हैं और 1-1.5 साल का आपको फील्ड का भी एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए वो एक गुड कॉम्बिनेशन बनता है करियर एज ए कंसल्टेंट। बट इसमें दिक्कत ये होता है कि अगर आप एक बार कंस्ट्रक्शन में चले गए तो आपको कंसल्टेंसी की जॉब मिलनी मुश्किल हो जाएगी। तो जनरली बेटर ये होता है कि आप पहले कंसल्टेंसी की जॉब ट्राई करें, और कंसल्टेंसी में 2-3 साल लगाने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको इन डेप्थ एक्सपोजर चाहिए फील्ड का, फिर आप 1-1.5 साल के लिए फील्ड में जा सकते हैं। बिकॉज कंसल्टेंसी के बाद फील्ड एग्जीक्यूशन जॉब में जाना आसान है। आपने 3-4 साल इधर लगाए, फिर 1-2 साल फील्ड में लगाए, बट अपना कंसल्टेंसी वाला टच नहीं छोड़ा आपने, अपना इंजीनियरिंग डिजाइन स्किल अगर नहीं छोड़ा, आप करते रहे साथ साथ, और उसके बाद अगर आप कंसल्टेंसी शुरू करते हैं, then I am sure you would become a very good structural consultant. और एक सर, अब फ्यूचर में अब कंसल्टेंसी ओपन करने के लिए कुछ कोर्स या फिर देखिए, जनरली आपको अच्छी मार्केट बनानी पड़ेगी, आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट फेथ होना चाहिए। तो आपकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए आप पहले कंसल्टेंसी में काम करेंगे और फिर फील्ड में भी काम करेंगे तो आपका नॉलेज लेवल बढ़ेगा। एक और चीज जो जनरली आजकल जब आप स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अगर आप अपने लेवल पे बिगिनिंग करेंगे तो हो सकता है लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट ना बने, क्योंकि जो कंसल्टेंट है ही इज लाइक ए डॉक्टर। अब पेशेंट का ट्रस्ट होगा डॉक्टर के पास तभी वो जाएगा, और वो ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है। तो कंसल्टेंसी में शुरू के सालों में काफी चैलेंजेस रहते हैं। एट द सेम टाइम समटाइम्स पीपल जज योर एबिलिटीज थ्रू योर डिग्रीज आल्सो, योर क्वालिफिकेशंस आल्सो। तो ऐसे में आपको अपनी क्वालिफिकेशन भी बढ़ा लेना बेटर होगा। अगर आप एमटेक या कुछ एमबीए इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या कुछ भी, जो भी आपका अपना एरिया जो आप डेवलप करना चाहते हैं, उसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे तो भी इट विल हेल्प द कस्टमर्स टू हैव फेथ ऑन यू। Okay, thank you. Sir, we have an announcement about our YouTube channel. We also have our YouTube channel where you can see a detailed training program on upcoming IS code given by Aman sir himself. So you can subscribe our YouTube channel because we will upload some of more technical videos on that. And yes, let me tell about our YouTube channel also. Well, we recently started our YouTube channel to promote civil engineering competitiveness. होता क्या है कि हम लोग जानते तो बहुत कुछ हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ 5-10% की कमी रह जाती है और हम लोग पूरी तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं या बेस्ट करियर नहीं बना पाते अपना। तो मेरा ये आइडिया था कि क्यों ना हम कुछ ऐसा सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट भी डेवलप करें जहां पर कि लोग लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट रिसर्च, इन सब चीजों के ऊपर सुन करके समझ करके अपनी स्किल्स को बढ़ा पाए। अभी आज के हमारे टाइम जब व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑप्शन केवल एक होता था कि हम लाइब्रेरीज में जाएं, रिसर्च पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स को पढ़ें और फिर जो समझ में आ गया वो हमने गेन कर लिया। आज की डेट में आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं थ्रू इंटरनेट सर्फिंग, बट इंटरनेट सर्फिंग में क्या होता है कि बहुत तरह के मिस इन्फॉर्मेशन भी रहते हैं। बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए गलत इंफॉर्मेशन भी लोड कर देती हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच कॉन्सेप्ट इज राइट, विच कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग। तो वो कंफ्यूजन वाला दौर जो चलता है तो फिर अगेन इट इज डैमेजिंग। तो वी थॉट दैट वी शुड हैव जेन्युइन
करेक्ट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, क्योंकि जनरली जब हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा समझने में टाइम ज्यादा लगता है। ऑडियो विजुअल्स हमारे लिए हमेशा हेल्पफुल होते हैं टू अंडरस्टैंड फास्टर। तो हमारी कोशिश रहेगी आने वाले टाइम में हम जो भी रिसर्चर्स हैं उनके साथ में उनकी जो वीडियोस, वो जो उनकी फाइंडिंग्स हैं उसके छोटे से 20-25 मिनट आधे घंटे के हम वीडियोस डेवलप कराएं, सो दैट सभी के लिए अंडरस्टैंडिंग में आसान हो, और उससे के उनके रिसर्च फाइंडिंग्स, उनके आउटपुट्स को हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके सबका बेनिफिट हम कर सकें। तो अभी वो बिगनिंग स्टेज में है, हो सकता है आपको अभी बहुत जल्दी जल्दी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और बहुत अच्छे वीडियोस ज्यादा ना देखने को मिले, बट स्टिल वी वुड सजेस्ट, क्योंकि हम आप लोगों को बार बार अप्रोच नहीं कर पाएंगे और आप लोग मिस कर जाएंगे अगर हमने अच्छी वीडियो डाल रखी हुई और आप उसको ना देख पाए। तो बेटर है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, so that whenever we upload any good information in that YouTube channel, आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि there is one video available, so that if you like you can check that. तो अंशुल आप जरा बता दीजिएगा YouTube चैनल का क्या वो I है? have provided the link for YouTube channel also and Facebook page also. You can like our Facebook page also. We have announced so many trainings and we will announce so many trainings on our Facebook page, not on YouTube channel, but on our Facebook page we will share the information. So, so our trainings are under the banner of Triple ES Academy, EASE Academy. These 3 E's are from the engineering. In engineering, you see 3 E's, and these 3 E's have, in my words, different meaning for us. And based on that, we have started this 3 E's, this Triple EEES Academy. So our Facebook page is in the name of that, and our YouTube channel also has same name. तो आप लोग उसको भी पसंद कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. We will be coming up with more and more training programs, specialized training programs, small training programs also, 2 दिन का, 1 दिन का, 5 दिन का, depending on the subject, depending on the demand. तो आप लोगों की अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स हो ट्रेनिंग की, आप वो भी हमें मेल में लिख सकते हैं, अंशुल से डिस्कस कर सकते हैं, and we can try to develop the training program for that area also. So this is all what we wanted to tell about our basic training programs. Further 1-2 क्वेश्चन हम ले सकते हैं अगर आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं और कोई. I just got a message from a other side. He's a student from a very prominent college of India, and I will not share the college name. Sir, he was saying that recently my placement offer got revoked due to COVID-19 pandemic. Now what should I do? नहीं, ये बहुत कॉमन है. मैंने अभी शुरू में भी बोला कि इस समय की स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे जो लोग काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट जो चल रहे थे, प्रोजेक्ट क्योंकि बंद हो गए हैं, तो हो सकता है कि आपको प्लेसमेंट ऑफर मिला हो और आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही हो और वो रिवोक हो गया, तो ये बहुत दुख की बात है. बट जनरली ज्यादातर कंपनीज क्या करती हैं कि आपको एक बार उन्होंने सिलेक्ट कर लिया तो दे वुड लाइक यू टू ज्वाइन देम, बट वो आपकी ज्वाइनिंग को डिले कर देते हैं कैंपस प्लेसमेंट के बाद. तो ऐसा बहुत बार हुआ है, नॉट ओनली दिस टाइम. 3-4 साल पहले भी इवन आईएम्स के स्टूडेंट्स को ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी जहां पे कि उनकी ज्वाइनिंग डिले हो गई थी या कुछ की कैंसिल भी हो गई थी. तो आफ्टर गेटिंग वेरी वेरी हाई पैकेज एट द टाइम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, बट लेटर ऑन नॉट ज्वाइनिंग, नॉट गिविंग द ज्वाइनिंग, इस तरह की सिचुएशंस कुछ सालों में आती रहती है. हमें अपने आप को उस चीज के लिए दुखी नहीं होना है कि अब हमारा क्या होगा, हमारा तो कैरियर कैंपस प्लेसमेंट होने के बाद भी हमारे हाथ से जॉब चली गई. नहीं, नथिंग टू वरी अबाउट. जो आपकी स्किल है, जो आपकी एबिलिटी है, वो आपकी रहेगी. अपॉर्चुनिटीज आएंगी. इट इज द टाइम टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस अवेलेबल टाइम. अगर आप अभी घर पर बंद हैं, आप ज्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, आप इस टाइम को यूज कीजिए अपनी स्किल, क्योंकि इट इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. आप में जितनी ज्यादा स्किल्स अच्छी होंगी, जितने ज्यादा अच्छे आपके वो स्किल्स और नॉलेज बढ़ेगी, आप जब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. तो इट इज बेसिकली ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एंड एवरीबॉडी हैज टू पास थ्रू इट. किसी के लिए भी लाइफ कभी भी आसान नहीं है. अपने आप को मतलब इजी करियर, फास्ट ग्रोथ कभी किसी को नहीं मिलता. देयर इज नो शॉर्टकट. आपको अपने स्किल्स, अपने नॉलेज, अपना पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते ही. और एक चीज और है जो आई वाज थिंकिंग टू डिस्कस इन माय डिस्कशन बट आई फॉरगॉट. जनरली सिविल इंजीनियर्स अपना करियर को आईटी वालों के करियर के साथ में जब कंपेयर करते हैं तो दे फील लाइक कि हमारा करियर तो बहुत स्लो चलता है, या हमारी तो ग्रोथ कम है, या हमारी इनिशियल सैलरीज बहुत कम है.
Now I want to tell you from my experience that IT sector is a different kind of sector and civil engineering is a different kind of sector. IT सेक्टर में आज केवल उनकी स्ट्रेंथ है और 2 साल बाद दे विल बी आउट ऑफ डोमेन अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो उनका बहुत शॉर्ट लिव्ड करियर होता है। एंड सिविल इंजीनियर का करियर शुरू होता है, तो सिविल इंजीनियर का ग्राफ नीचे से ऊपर जाता है, तो स्टार्टिंग होगी बहुत छोटे लेवल से और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, नॉलेज बढ़ती जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, लोगों का ट्रस्ट फेथ बढ़ता जाएगा, आपकी ग्रोथ, करियर ग्रोथ, सैलरी, इनकम, सब चीजें कंटिन्यूअसली बढ़ती ही जाएंगी। और आपके लिए अगर आप अपने आप को मेंटेन करते हैं अच्छे से, तो देयर इज नेवर अ रिटायरमेंट। आप 70 की एज में भी इक्वली और मैं कहूँगा हाईली वैल्यूएबल बन जाते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। Whereas an IT person has a very short career and they start their career at 21 and generally at 35 their career is finished. At the age of 35 अगर उनको आगे बढ़ना है तो उनकी स्ट्रगल उस लेवल पे आ जाती है जैसी स्ट्रगल आप आज 21 या 22 की एज में आप कर रहे हैं। तो हम उससे कंपेयर ना करें कि भैया उनको 50,000 रुपए की स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, सिविल इंजीनियर को 15-20 हजार रुपए से स्टार्ट करना पड़ रहा है। by the time you will reach the age of 35, there is more likely, there are high probabilities that you may overtake your IT friend. तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपका करियर डॉक्टर के करियर की तरह है, जैसे डॉक्टर 25 की एज तक तो पढ़ते ही रहते हैं, उसके बाद 30 की एज तक भी उनकी मार्केट पोजीशन ज्यादा नहीं बन पाती, वो लोग भी बहुत स्टाइपेंड नॉर्मल सैलरी से बढ़ते हैं। But by the time they reach the age of 50, they are at the peak of their career. Civil engineers का भी यही है, by the time you reach the age of 35 or 40, that is your best time that now you can continuously enjoy your better period. So हमें अपने करियर को, हमें अपने जॉब को, हमें अपने फील्ड को किसी दूसरे फील्ड से कंपेयर करने में अपना माइंड को नहीं डिप्रेशन में लाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी एम्बिशियस, वी शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, अपना हार्ड वर्क करते रहें और आगे बढ़ते रहें, है ना। एक क्वेश्चन भी मैं देख रहा था कि निकमार के बारे में पूछा था, तो निकमार इज ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड अगर आप निकमार से MBA या PG डिप्लोमा या इस तरह के कोर्सेज करना चाहते हैं, वहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं। अगर आप जैसे कि मैंने आपको बोला था कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का एक सर्टिफिकेट कोर्स भी होगा, और अगर फुल फ्लेज्ड MBA करना चाहते हैं तो फुल फ्लेज्ड MBA कोर्सेज भी होंगे। IITs में भी कंस्ट्रक्शन MBA, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की MBAs हैं, बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूशंस में भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की MBAs हैं। तो आप चाहे निकमार से करें, चाहे IITs से करें, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप करें, इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लर्निंग। कॉलेज का नाम आपको हेल्प करेगा इनिशियली, बट आपको एक ठीक है, आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकता है एक अच्छा कॉलेज का नाम, बट अल्टीमेटली आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही आपको ऊपर लेके जाएगी। नाउ आई एम टेकिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम द चैट। नाउ एक क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज M100, इज इट न्यू? नाउ कंक्रीट की स्ट्रेंथ को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसकी कितनी 28 डेज में कितनी उसकी स्ट्रेंथ आती है इन मेगा पास्कल्स और न्यूटन पर mm स्क्वायर इस यूनिट में, उसको हम किस स्ट्रेंथ बोलते हैं। जब हम किसी कंक्रीट को बोलते हैं M20, तो इसका मतलब ये हो कि 28 डेज में 28 दिन के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ इन जनरल 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा ही होगी। कैरेक्टरिस्टिक वर्ड जब हम लगाते हैं इसका मतलब 95% केसेस में वो स्ट्रेंथ उसकी 20 से ज्यादा होगी। M100 का मतलब यह है कि स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि अब उसकी स्ट्रेंथ 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से भी ज्यादा होगी। तो इट इज बेसिकली जंप 5-fold जंप फ्रॉम M20 विद द सेम मटेरियल्स ऑलमोस्ट। ठीक है, ओके। नाउ अंशुल ने YouTube चैनल का लिंक भेजा हुआ है आपको, उसमें चैट बॉक्स में आप उस पर लिंक क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अमन सिंह का क्वेश्चन भी आ गया। अर्चना का क्वेश्चन है, for sake of higher studies for civil engineering students, please spread some light on advanced surveying. Now we have good scope in survey and also some universities have introduced the same. Well, of course, surveying is the area because when we are into the construction execution field, सबसे पहला important part होता है layout.
एंड हमारे पास लेआउट के लिए आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, GIS के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और थियोडोलाइट्स हैं, GPS सिस्टम्स हैं। तो डिपेंड करता है, अगर आपका छोटा प्रोजेक्ट है तो आप उसमें अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट यूज करके आप सर्वेइंग करेंगे, लेआउट करेंगे। और अगर आपको किसी सिटी लेवल प्लानिंग करनी है, कोई हाईवे की प्लानिंग करनी है, किसी डैम की प्लानिंग करनी है, तो मे बी सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू आपकी इसमें सर्वेइंग होगी। और बहुत एडवांस्ड चीजें अवेलेबल हैं, इसमें भी एडवांस कोर्सेज अवेलेबल है। तो अगर किसी का उस चीजों में इंटरेस्ट है जहां पर कि surveying and layout related fields mein, if somebody wants to make the career, so that opportunity is also available. There is one question from Mr. Anubhav. What approach should one take to find a job, like calling in the office or meeting in person or directly emailing the detail? Also, I want to know what should be a student's learning route to ace the concept of design and analysis. Okay, very good question for all. I would, from my experience, I would say that if you want to apply for a job in an organization of your choice, first you should email your proper CV, which should be properly written with major highlights of your strength and capabilities. It should be very precise, because nobody has time to read 10-page CV. Generally, we prefer a CV of not more than 3 pages. Whatever strength, what are the basic key areas you want to work on, all these things should be mentioned. And if you get a call for a meeting, that is good. You can follow up 1 or 2 times with your CV. If there is no response, you can attempt to meet somebody concerned in the office to tell that you have passion and you want to work with your organization only, and you have good capabilities and you have worth of yourself to be working in that organization. So that may help your CV and yourself to be projected within the organization. And then it is up to the organization and your capabilities and the requirements that you get opportunity. Sometimes, even if when you are trying hard, and maybe that time the organization do not have vacancy, but after 2-3 months, if the vacancy comes, then you may get better chances of getting the joining opportunity. Now, to answer your second question, that how should the student learn to root ace of the concept of the design and analysis? Now, everybody needs to go through the real project learning. This is my opinion, that by just theoretical learning, you may be always confused. In the textbooks, so many things are given, you may not remember everything, and that is not required also. You should try to do real projects, because real projects will impose real challenges, and if you will be resolving the real challenges, you will be learning more. तो अपने लर्निंग को प्रैक्टिकल लर्निंग बनानी है। हम चाहे छोटा प्रोजेक्ट करें पहले इनिशियली, जो कि हम अपने अभी स्टैट ट्रेनिंग में छोटा प्रोजेक्ट करवाएंगे, हम लोग कुछ केस स्टडीज वगैरह भी बीच बीच में डिस्कस करेंगे, तो वो एक रियल लर्निंग होगी जिसमें चैलेंजेस भी होंगे और आपको कुछ करने का मौका भी मिलेगा। जब आप ट्रेनिंग फॉर्म में नहीं है, आप सेल्फ लर्निंग मोड में है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कुछ टाइम आप निकालें रिसर्च पेपर्स या जर्नल्स या कुछ जो भी लेटेस्ट चीजें चल रही हैं मार्केट में, उनको समझने के लिए, जानने के लिए। कुछ समय आप अपनी टेक्स्ट बुक्स के लिए निकालिए और कुछ समय आप निकालिए कुछ रियल वर्क करने के लिए, कुछ रियल प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि नॉलेज एंड स्किल दोनों हैंड इन हैंड चलता है। अगर आपकी नॉलेज ही नहीं है तो आप स्किल डेवलप नहीं कर सकते, और अगर आप स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं बट नॉलेज ही नहीं है तो आप स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे तो यू वुड बी हैविंग अ वेरी हाई रेट ऑफ, वेरी हाई स्पीड ऑफ लर्निंग, दैट विल हेल्प यू इन योर करियर ग्रोथ एंड सिलेक्शन ऑफ योरसेल्फ। इंडियन स्टैंडर्ड्स, अगर आप इंडिया में हैं और अगर आप इंडिया से बाहर हैं, तो जिस भी कंट्री में है, wherever you want to have your career, suppose कुछ लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज को करियर बनाना चाहते हैं, तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पहले आपको पता करना पड़ेगा कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, क्योंकि कुछ एरियाज में ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स चलते हैं, कुछ जगह पे अमेरिकन स्टैंडर्ड्स चलते हैं, एशियाई स्टैंडर्ड्स चलते हैं। तो आपको उनमें अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज आप एज ए रॉ पर्सन अगर जाना चाहेंगे तो यू विल बी द लायबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी नहीं चाहेगी कि आपको 1-2 साल वो खर्च करे, सैलरी भी दे और सिखाए भी,
तो जनरली कंपनीज एक्सपेक्ट दैट आपको कम से कम उतना तो आना चाहिए कि यू डू नॉट बिकम ए लायबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। आप कम से कम अपना खर्चा निकालने लायक तो काम करना शुरू करें शुरू में, अब फिर धीरे धीरे आपकी आउटपुट बढ़ती जाएगी, बिकॉज आप धीरे धीरे ज्यादा चीजें सीखते जाएंगे। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपकी सैलरीज भी बढ़ती जाएंगी, कंपनी के लिए आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। तो शुरू में तो ब्रेक इवन भी रहे तो अच्छा है कि आपने जितना कंपनी का रिसोर्स यूज किया उतना ही आपने उसका कंपनी को रिटर्न बैक किया। बट धीरे धीरे 2-3 साल में कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आप कंपनी को जितनी कंपनी आपको दे रही है उससे कम से कम 4 to 5 टाइम्स आप रिटर्न कंपनी को दें। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप कम से कम बिगिनिंग में उतनी स्किल्स रखते हैं जिससे कि कंपनी को आप एक लायबिलिटी ना नजर आए। ओके, नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, व्हाट इज द करियर चॉइस one can take up to work towards more green building construction, like ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी कंट्री का भी आज की डेट में नारा है और दुनिया भर में सब लोग चाहते हैं कि जो भी डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल हो। Now, इस फील्ड में अभी आज की डेट में जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादातर आर्किटेक्ट्स के लिए हैं और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए हैं, बिकॉज अभी हम ज्यादा प्रोडक्ट सावी हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास ग्लास ऐसा होना चाहिए जो कि हीट ज्यादा अंदर ना आना दे, क्योंकि हमें अगर हीट ज्यादा आएगी तो हमें एसी का खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। हम कुछ ऐसी सिस्टम्स बनाएं उसमें आर्किटेक्चरल प्लानिंग का रोल आ जाता है, हम कुछ इंसुलेशन मटेरियल लगाएं उसमें आर्किटेक्ट का रोल आ जाता है। तो सिविल इंजीनियर्स के लिए उसमें अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली बहुत ज्यादा नहीं है। बट अगर आप कुछ प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आप कुछ अच्छी इंसुलेशन मटेरियल बनाना चाहते हैं, आप कुछ अच्छे फसाड सिस्टम बनाना चाहते हैं, आप कुछ वॉल पैनलिंग देना चाहते हैं, आप कुछ अच्छे रूफिंग सिस्टम्स देना चाहते हैं जो कि सस्टेनेबल हो, ग्रीन हो। ग्रीन का सीधे सीधे मीनिंग है एनर्जी सेविंग हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। अगर आप उस फील्ड में कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जा रहे हैं तब तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। बट एज ए कंसल्टेंट और एज ए डिजाइनर अभी आज की डेट में सिविल इंजीनियर्स के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में नहीं है।